جو بندہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے اللہ نے اس کے لیے بہترین اجر اور مرنے کے بعد بہترین اجر عظیم کا وعدہ بھی دیا ہے۔ ایک مختصر سا وعدہ یہ ہے کہ جو بچہ حفظ قرآن کر لے گا، صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے والدین کو کل ایسا تاج پہنایا جائے گا جو 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ آج جو خوش قسمت بچہ ہمارے ساتھ ہے، جو دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ بچہ ہے جس نے مکتب میں پڑھ کر کڑی محنت کر کے حفظ کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ محنت لگی قرآن پاک حفظ کرنے میں۔ بہت خوش ہیں کہ ہمارے بیٹے نے کلام پاک کو حفظ کیا۔ خوشی اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی ہے چونکہ بچہ مکتب میں پڑھتا تھا اور ہمارے ذہنوں میں اکثر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مکتب میں بچہ حفظ نہیں کر سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ معاشرہ کتنا تہذیب والا بنے گا، تمدن والا بنے گا، کیونکہ قرآن اسے کسی بھی جگہ جا کر، کسی پوسٹ پر جا کر، کسی کرسی پر جا کر غلط نہیں کرنے دے گا۔ السلام علیکم، آداب معزز سامعین و ناظرین، فرید احمد نائک کا سلام و آداب قبول فرمائیں۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ مدارس میں جلسہ دستار بندی ہوتا ہے، لیکن آج جو خوش قسمت طالب علم، آج جو خوش قسمت بچہ ہمارے ساتھ ہے، جو دیکھ رہے ہوں گے، یہ وہ بچہ ہے جس نے مکتب میں پڑھ کر کڑی محنت کر کے حفظ کیا ہے۔ اور یہ خوش قسمت بچہ آخر کون ہے، آخر کس طریقے سے محنت اور مشقت کر کے اس بچے نے حفظ کیا ہے، یہ تمام داستان ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا آپ اپنا نام بتا دیں۔ میرا نام محمد عقیل میر ہے۔ عقیل صاحب، کیسا محسوس ہو رہا ہے آج آپ کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے؟ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے اور کتنی محنت لگی آپ کو یہ مقام حاصل کرنے میں؟ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت زیادہ محنت لگی قرآن پاک حفظ کرنے میں، اور اچھا لگ رہا ہے ابھی جو ہمارے لیے یہ محفل سجائی گئی۔ انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں کیا آپ سوچتے ہیں، اس میں کیا کرنے والے ہیں آپ؟ اس میں انشاءاللہ آگے جا کے اس کا دور کریں گے اور اس کے بعد قاری کورس، مفتی کورس کریں گے۔ ایک مکتب میں رہ کر جو ہے، آپ جانتے ہیں، سبھی معزز سامعین و ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ مختصر وقت کے لیے جو ہے آپ مسجد میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ۔ وہیں مدارس کی بات کریں تو وہاں دن بھر جو ہے اسی کوشش میں بچے لگے رہتے ہیں، تو کتنا مشکل رہا یہ سفر؟ اتنا مشکل بھی نہیں تھا، مگر تھوڑا سا مشکل، دن بھر اسکول جانا اور شام کو سبق یاد کرنا، صبح سنانا۔ تو اسکول میں بھی آپ جاتے ہیں؟ ہاں، اسکول میں۔ کس کلاس میں ہیں آپ؟ میں 7th میں پڑھتا تھا۔ 7th میں پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کریڈٹ، جیسے کوئی کچھ حاصل کرتا ہے، اکثر آپ نے نیوز میں سنا ہوگا کریڈٹ، تو آپ کیا کہیں گے، کسے کریڈٹ دیں گے آپ؟ والدین کو۔ والدین کو۔ اور کیا پیغام رہے گا ان بچوں کے لیے؟ کیونکہ اکثر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مدارس میں جا کر ہی حفظ کر سکتے ہیں، تعلیم اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں اور بہتر بن سکتے ہیں، وہیں آپ نے جو کام کیا ہے وہ الگ ہے۔ تو اس حوالے سے جو آپ کے جو ہم عمر ہیں یا پھر جو بھی مدارس میں ہیں، مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان بچوں کے لیے کیا پیغام رہے گا آپ کا؟ ان بچوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، قرآن پاک حفظ کریں۔ قرآن پاک کی دولت کسی شخص کو ملتی ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو حفظ کریں اور آگے بڑھیں۔ اور کچھ کہیں گے آپ؟ بس میری یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی بچے مکتب میں پڑھتے ہیں سب کو اپنے اپنے استاد حافظ قرآن بنائیں۔ آمین، اور بہت بہت مبارک ایک دفعہ پھر سے آپ کو۔ معزز ناظرین کرام، اکثر جب بھی بچہ کچھ کامیابی حاصل کرتا ہے تو سب سے خوشی اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ والدین ہیں، کیونکہ والد جب کڑی محنت کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ جو روٹی ہوتی ہے وہ والدین کا ایک قسم سے خون ہم کہہ سکتے ہیں بچے کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے، اور جب وہ بچہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی اگر کسی کو ہوتی ہے تو وہ والدین ہیں۔ ہم ان کے والد سے بھی بات کریں گے، والد محترم ہمارے بیچ موجود ہیں، میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ محترم، کیا نام ہے آپ کا؟ یہاں پہ آ جائیں۔ ہاں، الحمدللہ، میرا نام تنویر احمد ہے، میر جنگلوار۔ تنویر صاحب، سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں گا آپ کو، کیونکہ آپ کے بچے نے جو یہ نمایاں کام کیا ہے، الگ ایک کام کیا ہے، یہ قابل تعریف ہے، اور اس کے لیے آپ جو ہے
मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। कैसा महसूस हो रहा है इस तरीके की कामयाबी? क्योंकि जब भी कोई बच्चा क्वालिफाई करता है, चाहे वो 12th पास करता है, अच्छे नंबरात लेता है, डिस्टिंक्शन लेता है, पोजीशन लेता है, लेकिन इस किस्म का जमावड़ा, इस किस्म की जो है लोगों की तादाद वहां पर देखने को नहीं मिलती है। उलमा इकराम का जो एक जमावड़ा, जमघटा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बच्चे के लिए इस तरीके की महफिल सजना, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि बहुत खुश हैं कि हमारे बेटे ने कलाम पाक को हिफ्ज किया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाकियों के बच्चों को भी हिफ्ज करने की तौफीक अता फरमाए। असल में जब हम दावत व तबलीग के अंदर लगे तो उसमें लगने से जब हमारे सामने फजीलत आई और इसकी अजमत आई तो हम वहाँ से वापस आकर और उलमाए किराम की जूतियाँ उठाने की बरकत से अल्लाह ने ये तौफीक दी कि हम अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाएं। तो हमने ये इरादा कर लिया और तय भी कर लिया। फिर हमने इनको मदारिस के अंदर कुछ वक्त के लिए डाला। को सेहत ठीक न रहने की वजह से इनको हमने मदरस से हटा लिया। तो हम कारी साहब के साथ, कारी अकरम साहब के साथ बात करने के बाद कि इनको मकतब ही में हिफ्ज कराना है, कारी साहब ने भी अहद कर लिया कि इंशाल्लाह इनको यहीं हिफ्ज करेंगे, यहीं हिफ्ज कराएंगे। तो फिर बच्चे के जज्बात के साथ उनकी कदर करते हुए इन्होंने मेहनत भी की। और अल्लाह का कलाम बहुत आसान है, जो भी इंसान चाहे तो उसको हिफ्ज कर सकता है। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, उलमा के किराम की जूतियां सीधा करने से, दावत की मुबारक मेहनत की बरकत से अल्लाह ने हमारे बेटे को आलिम हाफिज कुरान बनाया। क्या पैगाम रहेगा उन तमाम वालिदैन के लिए जो ये सोचते हैं कि ये शायद एक किस्म से नामुमकिन भी है, क्योंकि वक्त बहुत कम मिलता है, और जो बच्चा स्कूल में तालीम भी हासिल कर रहा है, फिर मकतब में भी जाना, और ये दोनों चीज़ें एक साथ चलाना मुश्किल होता है, और लोगों को लगता है कि मदारिस के अंदर ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम हिफ्ज कर सकते हैं। तो उन वालिदैन के लिए क्या पैगाम देंगे? नहीं, ये असल में अगर वालिदैन चाहें तो सबसे आसान और सबसे सहल इसको याद करना है। और अल्लाह का कलाम इतना आसान है, जब इंसान चाहे याद कर सकता। अगर वालिदैन चाहें तो बच्चे मकातिब के अंदर भी हाफिज कुरान बन सकते हैं, क्योंकि हमने देखा जमातों में निकल कर बाहर मकातिब के अंदर बच्चों ने हिफ्ज किया है। डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी हैं और मास्टर भी हैं, लेकिन हाफिज कुरान भी है। ये कोई बड़ी बात, मुश्किल काम नहीं है अगर वालिदैन चाहें। अगर वालिदैन चाहेंगे नहीं तो फिर अगर वो मदारिस के अंदर भी जाएंगे तो वहां भी नहीं बन सकते। अगर वालिदैन चाहें तो मकतब के अंदर भी हाफिज कुरान बन सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर बेटे के पीछे मेहनत क्या कराई जाए तो वो हाफिज ना बने। क्या चाहते हैं आगे आने वाले वक्त में आपका जो बेटा है ये क्या बने और किस तरीके से आपका नाम रोशन करे? क्या चाहते हैं, सपना क्या है? मैं यही चाहता हूं कि हमारा बेटा और आगे बढ़े और दीन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करे। कि हमारा जो इरादा है कि इफ्ता कराने तक, यानी कि मुफ्ती कोरस कराने का ये हमारा इरादा है। अब जैसे इनके उस्ताद कारी अकरम साहब से जैसा मशवरा होगा इंशाल्लाह वैसे ही आगे इनको बढ़ाते रहेंगे। और अल्लाह ने जो मुकद्दर में रखा होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ से फैसला होगा वही होगा। तो बाकी हमारे करने से कुछ नहीं होगा, करने वाली जात अल्लाह की है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहें तो वो इन्हें मुफ्ती भी बना सकते हैं, आलिम दीन भी बना सकते हैं, कारी कुरान भी बना सकते हैं। हमारी कोशिश है, नतीजा अल्लाह के हाथ में। चलिए, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना कि करने वाले की ज़ात जो है, करने वाली ज़ात जो है वो परवरदिगार है, वो जिसे चाहे जो चाहे वो बना सकता है। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमारा बच्चा जो है दीन की खिदमत करे। ये जज्बा जो है बहुत बड़ी बात होती है इस दौर में, इस तरीके के अल्फाज बयान करना, और इस दौर में अगर हम इसे जज्बा एसार कहें तो शायद गलत नहीं होगा। उस्ताद मोहतरम भी हमारे साथ मौजूद हैं और अदबन में गुजारिश करूंगा आप आगे आ जाएं। मोहतरम से आपका इसमें शरीफ जानने की कोशिश करूंगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। मोहतरम, सबसे पहले तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। जिस तरीके का काम आपने किया है, जिस तरीके का काम आपने सरअंजाम दिया है, बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। तो एक उस्ताद माँ बाप से कम नहीं होता है। उस्ताद का जो दर्जा है वो अल्फाज में बयान करना नामुमकिन सी बात है, एक बड़ा दर्जा है। तो कैसा महसूस हो रहा है कि उस्ताद को कि जिस शागिर्द के पीछे मेहनत की आज वो किसी हद तक कामयाब हो? जी, उस्ताद तो हमेशा उस्ताद के दिल को हमेशा खुशी होती है जब वो अपने बच्चों को कामयाबी में देखता है, कामयाब देखता है। माशाल्लाह आज मेरे दिल को भी बहुत ज़्यादा खुशी है, चूँकि काफ़ी अरसे से हम चाह रहे थे और इस बच्चे पे मेहनत कर रहे थे। अल्लाह ने आज वो खुशी का मौका दिया, इनायत फरमाया। आज इस बच्चे की दस्तारबंदी है। चूँकि खुशी इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही है चूँकि बच्चा मकतब में पढ़ता था और हमारे जहनों में
अक्सर ये बैठा हुआ है कि मकतब में बच्चा हिफ्ज नहीं कर सकता है, ये गलत है। अगर वालिदैन का साथ हो तो हर उस्ताद के पास इतनी काबिलियत और सलाहियत होती है कि वो मकतब में भी बच्चे को हाफिज बना सकते हैं। लेकिन इसमें अगर किसी को किरदार जाता है तो सबसे ज़्यादा इसके वालिद को जाता है। इसके वालिद, इस बच्चे के वालिद और बच्चे ने और हम सब ने मिलकर, यहाँ की कमेटी भी है, चूँकि हमारा ये एक मकतब, मिसाली मकतब हम इसको बनाना चाहते हैं। यहाँ पर चंद आदमी हैं, 5 या 4 आदमी हैं जो इस मकतब को मिलकर चलाते हैं, और एक उस्ताद की तनख्वाह भी वो देते हैं, एक उस्ताद को तनख्वाह भी देते हैं। तो अगर चाहें तो उस्तादों के पास इतनी सलाहियत होती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है वालिदैन अगर साथ देंगे तो हर मकतब से बच्चा हाफिज निकल सकता है। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है ताउन अगर हो, अगर यकजा हो जाए, एकजुट हो जाए, इत्तेफाक हो तो कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल हकीकत है फरीद भाई, जैसे आप फरमा रहे हैं ये हकीकत है। इसमें वालिदैन का ताउन असातिज़ा के साथ बहुत ज़रूरी है। चूँकि इस वालिद का ताल्लुक मुझसे बहुत ज़्यादा रहा, अगर बच्चे में कोई खामियां होती थी तो मैं वालिद से कहता था तो वालिद उस खामी को दूर करने की कोशिश करता था। आज अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के लिए जब हमारे वालिदैन बच्चों को भेजते हैं तो हमें स्कूलों से नफरत नहीं, दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, हमारी तमन्ना है, और हम इसीलिए जद्दोजहद भी कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारा एक डॉक्टर हाफिज कुरान भी होना चाहिए, एक वकील हाफिज कुरान हो, साथ में वकील भी हो, एक जज हाफिज कुरान भी हो, साथ में जज भी हो। जब वो हाफिज कुरान होगा और उसके बाद जो फैसले होंगे तो इंशाल्लाह अच्छे ही फैसले होंगे। तो इसमें जो सबसे ज्यादा ताउन वालिदैन का होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन जब मकतब में बच्चों को भेजते हैं तो बेपरवाही से भेजते हैं, वक्त का खास ख्याल नहीं रखा जाता है, ये पता नहीं कि हमारा बच्चा कब जा रहा है, कब आ रहा है, उस्ताद के पास क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। साल हर साल बच्चे को आते हुए हो जाते हैं, लेकिन वालिदैन को पता ही नहीं होता है, इल्म ही नहीं होता है। इसके बरक्स हम देखते हैं दुनियावी तालीम के लिए कि हम अगर वालिद को टाइम नहीं तो वालिदा उसको तैयार करती है, नहलाती है, वर्दी पहनाती है, कंघा करती है, उसके बाद हाथ पकड़कर स्कूल के गेट तक जाती है, और जब छुट्टी होती है तो स्कूल के गेट से उसको रिसीव करती है और वापस लाती है। अक्सर माशरत के साथ आपको रुकूंगा, यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से माशरे में है कि उसका बेटा जो है मकतब जा रहा है तो हम भी भेज देते हैं, कुछ तो सीख जाएगा, ये वाली सोच है मकतब के लिए। जी अक्सर यही सोच है, इसलिए इसमें वालिदैन की भी कमजोरी है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर वालिदैन थोड़ा सा पेन ले लें, दर्द ले लें, तो इंशाल्लाह ये कोई नामुमकिन बात नहीं है कि मकतब से हाफिज कुरान निकल जाए। हमें तो कोई ऐसा नहीं लगता है, इंशाल्लाह हमारा इरादा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से हमारे इस मकतब से और भी तलबा जो है हिफ्ज़ कुरान इस करके बच्चे निकले। को हिफ्ज करने तक कितना वक्त लगा? कोई 3 साल का अरसा लगा हमें। 3 साल के अरसे के अंदर अंदर ये सब मुमकिन। जी जी तो आपका पैगाम क्या रहेगा तमाम जो लोग हैं जो अपने बच्चों को मकतब भेजते हैं, मदारिस जो अलग अलग हैं वहाँ पर भेजते हैं, किस नीयत से इंसान को वहाँ पे बच्चे को भेजना चाहिए, क्या पैगाम देंगे आप? हमारा पैगाम यही रहेगा उम्मत मुस्लिमा से कि मदारिस में बहुत कलील जो है लोग जाते हैं और मदारिस का रुख करते हैं, लेकिन मकतब एक ऐसी चीज़ है कि इसमें हर एक का बच्चा पढ़ सकता है, चाहे वो किसी भी निस्बत का इंसान हो, चाहे वो पुलिस में हो, डॉक्टर हो, वकील हो, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो 1 घंटे के लिए अपने बच्चे को मकतब में भेज सकता है। ये 1 घंटा इंशाल्लाह जब मकतब में बच्चे को भेजा जाएगा तो कल यही बच्चा इंशाल्लाह दीनदार भी बनेगा, नमाजी भी बनेगा, हाफिज कुरान भी बनेगा, और मेन चीज़ है कि हमारे जाने के बाद हमारे लिए सदका जारिया रहेगा और कुरान पाक पढ़ के दुआ भी करेगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस्ताद का क्या कहना आपने सुना कि अगर हम यहाँ से कूच कर जाएंगे तो ये वही बच्चा होगा जो कुरान करीम पढ़कर हमें दुरूद भेजेगा, हमारे लिए दुआ करेगा, और हमारी जो आखिरत है वो भी संवर जाएगी। हमारे साथ मोहतरम रईस साहब हैं जो कि बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ पर बुलाए गए थे और इस खास मजलिस का ये हिस्सा बने। मोहतरम से बाइज्जत गुजारिश करूंगा थोड़ा सा करीब आ जाएं और मोहतरम से मैं पैगाम लेने की कोशिश करूंगा, आखिर इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको बता दूं और आपको भी इल्म है कि ये एक अलग किस्म की चीज़ हमें देखने को मिली। मदारिस के अंदर अक्सर हर साल हम ये जलसा देखते हैं, लेकिन मकतब में पहली दफ़ा मैंने देखा, हालांकि ऐसा होता होगा, तो मैं चाहूँगा इस पर रोशनी डालें और मज़ीद कुछ पैगाम आप भी दें। जी बिल्कुल,
बतौर शिरकत मैंने भी आज पहली बार मकतब में जलसा दस्तारबंदी में शरीक में हुआ। जनाब वेली के लिए ये बहुत ही बड़ा और बेहतरीन पैगाम है। बाहर तो मकातिब में हुफाज किराम निकलते हैं, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर और खासकर जनाब वेली के लिए ये बहुत बड़ा कदम भी है और बहुत बड़ा पैगाम भी है उन हजरात के लिए जो आइम्मा हजरात और हुफाज किराम मसाजिद में नमाज पढ़ाते हैं और साथ ही सुबह शाम मकतब पढ़ाते हैं। वो भी अगर एक कोशिश करें तो, क्योंकि 90 या 95% जो है मदारिस ये बच्चे हमारे स्कूलों से वाबस्ता है, चाहे वो एकेडमीज हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, और वही बच्चे सुबह शाम, चाहे सुबह वो मस्जिद में जाए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, हाफिज साहब के पास, या शाम को जाए, तो सब अगर यही जज्बात लेकर जो हमारे कारी अकरम साहब ने आज उजागर किए, इस तरह बहुत सारे और भी साथी हैं हमारे जो इस तरह के जज्बात रखते हैं, लेकिन सब जब इस जज्बात में शामिल, ऐसे जज्बात में शामिल हो जाएंगे तो एक लहर दौड़ जाएगी और सबको शौक पैदा हो जाएगा कि वो चाहे दुनिया में किसी भी ओहदे पर जाए, किसी भी ऊंचाई तक जाए, साथ ही साथ उसके पास कुरान मुबारक की दौलत होगी तो सोने पे सुहागा है। माशरा कितना तहजीब वाला बनेगा, तमद्दुन वाला बनेगा, क्योंकि कुरान उसे किसी भी जगह जाकर, किसी पोस्ट पर जाकर, किसी कुर्सी पर जाकर गलत नहीं करने देगा। बार बार ये उसको दस्तक देगा, भाई तू हाफिज कुरान है, तो रिश्वत मत ले, तो हाफिज कुरान है, तो गलत बात मत कर, तो हाफिज कुरान है तो किसी को मत सता, तो हाफिज कुरान है तो तिजारत में गड़बड़ मत कर। तो यह बहुत ही बेहतरीन कदम है। मैं अपने आप को भी इस मजलिस में आकर अपने आप पर भी एक ये खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूं कि मकतब के अंदर जलसा दस्तारबंदी, तो इस मेहनत को मैं दिल से सलाम करता हूं। उन वालिदैन का जो उस्ताद के साथ शिरकत रही इस बच्चे के हिफ्ज कराने में, तो वाकईतन वालिदैन भी मुबारकबादी के लायक हैं, ये बच्चा भी मुबारकबादी के लायक है, वो उस्ताद मोहतरम भी, बल्कि ये पूरी बस्ती जिनकी कोशिश की वजह से ये एक ऐसा नमूना वजूद में आया जो औरों के लिए भी नमूना आगे बन रहा है। मोहतरम, आखिर में क्या पैगाम देंगे वालिदैन को और वो बच्चे जो मकादिब में जाकर या फिर मदारिस में जाकर तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए बिलखुसूस क्या पैगाम रहेगा आपका जिससे उनकी मजीद हौसला अफजाई? पैगाम यही है कि हमने जो है दीन को बहुत पिछला दर्जा दिया है। उससे पहले हमारे पास एकेडमी के मसाइल रहते हैं, स्कूल के मसाइल रहते हैं, इसी तरह उनकी जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के मसाइल रहते हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ी फॉर्मेलिटी एक ईमान के लिए जो है वो दुनिया में आने और जाने की है। आते वक्त भी हमें अजान की जरूरत पड़ती है, जाते वक्त भी नमाज की जरूरत पड़ती है। तो फिर हमें इंतजार कर करके, मतलब जो इलाके के महल्ले के कोई हाफिज साहब आ जाए, कोई इमाम साहब आ जाए, वो अजान दे दे बच्चे को, वही आके नमाज जनाजा पढ़ाए बच्चे को। इसलिए जब हमारी जरूरत कुरान है, हमारी जरूरत दीन है, तो हम उस एकेडमी के फॉर्मेलिटी से ज्यादा इसकी फॉर्मेलिटी पूरी करें, उस उस्ताद की फॉर्मेलिटी, उस मकतब के इंतजामिया की फॉर्मेलिटी पूरी करें। और ज्यादा हक रखता है हमारा दीन, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान कि दुनियावी तालीम से ज्यादा हम फोकस इस दीन पर करें। जो दीन उसको कल माँ बाप का दर्जा बताएगा, जो दीन कल उसको जो है इस्लाम की रफात सिखाएगा, और घर भी आबाद रहेगा, माशरा भी आबाद रहेगा। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए दीनी तालीम पर, क्योंकि देखा गया है डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी, स्कॉलर, एसएचओ साहब, मास्टर साहब, और जो है क्या क्या डिग्रियां, क्या क्या ओहदे होते हैं, लेकिन इस्लामी लिहाज से अगर देखा जाए तो परेशानियां होती है। हम यही चाहते हैं कि एक मास्टर हो, जेडीओ हो, या किसी भी दुनियावी ओहदे पर हो, जब जनाजे की बारी आ जाए तो ये जेडीओ साहब जनाजा पढ़ाए, एसएचओ साहब जनाजा पढ़ाए, एसएचओ साहब निकाह पढ़ाए, ऐसा माहौल पैदा हो जाए। तो वो उसी से माहौल पैदा हो जाएगा जब हम कुरान मुबारक की तालीम को तरजीह देंगे। हमने इसको तरजीह नहीं दी है, हमने इसको आखिरी दर्जा, जब टाइम मिलेगा तब मकतब, उससे पहले ये सारी चीजें हम जरूरी समझते हैं। उसी तरह उससे ज्यादा इस चीज को अगर जरूरी समझेंगे तो इंशाअल्लाह माशरे में तब्दीली और इनकलाब जरूर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम वक्त देने के लिए। मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, कुरान करीम को अपने सीने में महफूज करने वाला ये खुश नसीब तालिब इल्म जो है इस वक्त मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और जो मेहनत इसके पीछे लगी है, जाहिर सी बात है वो खाली एक शख्स की मेहनत नहीं होती है, वो वालिदैन की मेहनत होती है, वो उस्ताद की मेहनत होती है, और बेशक उस बच्चे ने खुद भी मेहनत की है। और इस वक्त जो है एक खुशी की लहर यहाँ के लोगों में है, वालिदैन में है, और उस उस्ताद में भी है जिसने मेहनत कराई। फिलहाल यही
मालूमात लेकर हाजिर हुआ था कि एक अलग किस्म की चीज़ मुझे भी देखने को मिले, अलग किस्म का ये प्रोग्राम मुझे देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि इसको अक्स बंद करके आप तमाम लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूं और आपको दिखाऊं कि सिर्फ मदारिस में हिफ्ज नहीं किया जा सकता, बल्कि मकतब में भी अगर कोई कोशिश करे तो हिफ्ज किया जा सकता है। यानी कि मुमकिन कुछ भी है, सिर्फ अगर करनी है तो वो मेहनत है, सिर्फ अगर करना है तो वो अहद है कि हम ये करके दिखाएंगे। फिलहाल इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है कि हमने कुरान को उतारा, कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। रोज़ अव्वल से कुरान की हिफाजत हो रही है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबईन को, तबे ताबीन को। वो दौर जब किताबत का दौर नहीं था, जब कागज़ नहीं था, स्याही नहीं थी, सहाबा किराम ने उसको पत्थरों पर, हड्डियों पर और खालों पर लिख कर हिफाजत की और सीना ब सीना ये कुरान चलता हुआ गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं हर इंसान के जेब में कुरान मौजूद है, हर मोबाइल में कुरान मौजूद है, लेकिन असल कुरान की हिफाजत सीना ब सीना हुई है और ये सीना ब सीना ही कुरान की हिफाजत का सही ज़रिया है। इसलिए कि सारी चीज़ें, सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म होने वाली है, एक झटके में ख़त्म भी हो सकती हैं और इस वक्त हम इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन असल जो बंदा कुरान करीम को हिफ्ज़ कर लेता है, अल्लाह ने उसके लिए बेहतरीन अज्र और मरने के बाद बेहतरीन अज्र अज़ीम का वादा भी दिया है। एक मुख्तसर सा वादा यह है कि जो बच्चा हिफ्ज़ कुरान कर लेगा, सिर्फ़ उसको नहीं बल्कि उसके वालिदैन को कल ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं चाँद की तरह चमक रहा होगा। और जैसे आज हमने यहाँ पर इस बच्चे की दस्तारबंदी की है, कल क़यामत के दिन जब मैदान महशर बर्पा होगा, वहाँ पर हर इंसान मौजूद होगा, वहाँ पर इन बच्चों के वालिदैन आएंगे। बहुत सारे वालिदैन वो होंगे जो मज़दूर पेशा होंगे, जो दुकानदार होंगे, जो खेती बाड़ी का काम करते होंगे। ज़ाहिरी तौर पर वो आलिम हाफिज़ नहीं है, वो तो एक दुनियादार, दुनिया के काम में लगे हुए, लेकिन उनका बच्चा हाफिज़ कुरान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मकाम पर उनको बिठाएंगे और ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से उनके सरों पर ऐसा ताज रखेंगे। हाफिज़ कुरान से अल्लाह फरमाएंगे, इक़रा वरतक़ी, पढ़ता जाओ और चढ़ता जाओ, जहाँ तेरी आखिरी मंजिल होगी वहाँ तेरा ठिकाना होगा। लिहाजा कुरान करीम के अल्फाज को, मानी को, तर्जुमे को, तफसीर को हिफ्ज़ कर लेना, याद कर लेना, ये हर ईमान वाले की ज़िम्मेदारी है। ये मदारिस में तो चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब के अंदर ये चल रहा है। इस इलाके के अंदर, खित्ते चनाब के अंदर बेशुमार मकातिब ऐसे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन मकतबों के अंदर छोटे छोटे बच्चे और बाज़ मकातिब के अंदर बच्चियाँ भी कुरान करीम हिफ्ज़ कर रही हैं। उम्मीद है कि यहाँ जंगलवाड़ के अंदर तज़ीमुल कुरान के नाम से जो मकतब चल रहा है, आज हमें अल्लाह ने साबित बख्शी कि एक बच्चे के हिफ्ज़ कुरान के ख़त्म के मौके पर हम यहाँ पर आए थे। आइंदा इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है यहाँ पर बच्चियाँ भी हाफिज़ हो जाएंगी, बच्चे भी हाफिज़ हो जाएंगे। लिहाजा यहाँ इलाके वालों और इस गाँव और इस बस्ती वालों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान की तरफ रग़बत दिलाएँ, शौक़ दिलाएँ और बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएँ। और अतराफ़ में और पूरे आलम के अंदर हर मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी बनती है, हम अपने बच्चों को कुरान के साथ वाबस्ता करें और इस्लाम की तालीमात से अपने बच्चों को रोशनास करें।